بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ مناظر ہیں فیصلہ آنے کے بعد. جی تو یہ مناظر ہیں سپریم کورٹ میں جو اہم کیس کی سماعت تھی اس کے بعد کے مناظر ہیں. یہ اس وقت ہم کورٹ روم کے باہر سپریم کورٹ کے باہر ہم جو ہے احاطہ عدالت میں موجود ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور اس وقت جو سماعت کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 90 ڈیز کا اب اس کے اندر جو ہے انتخابات ہونا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ جو معاملات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے اطہر من اللہ نے یہ بھی سوال اٹھا دیا ہے کہ جس طریقے سے جس طرح سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کیا وہ درست تھی, کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہیں یا پھر نہیں. اور یہاں پر جس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں واپس بحال ہو جائیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے اس وقت. اور اس وقت تمام جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں اور باقی جتنے بھی یہاں پر رپورٹرز ہیں سینئر جو ہے اپنا صحافی ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ وہ جو تھا کہ یہاں سے کوئی جلدی سے فیصلہ آئے گا, مگر آج کی سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ کیس کی جو اپنا فیصلہ ہے وہ اتنی جلدی نہیں آئے گا اور یہ ایک لمبا چلے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو الیکشن ہے وہ بھی 90 ڈیز میں نہ ہو سکیں اور اس کے بعد ہو جائیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کل اس کیس میں یہاں پر کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ نہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ وکلاء کی آواز نہیں ہو سکتی ہے. ہم بار کو کالے کوٹ کو کسی ایسی اس میں مذموم حرکت میں شامل نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو کاؤنٹرنس کر سکتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے 9 ججز کا جو بینچ بنایا گیا ہے وہ اس کی آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیے گا. اس کی شروعات کس نے کی ہے, ریفرنس کس نے بھیجا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے. جس کیس میں بھی ہے انہوں نے ایک علیحدہ بنا کے انہوں نے ایک چیف جسٹس صاحب کو بھیجا کہ آپ اس کو سو موٹو لیجئے گا, یہ ایک نیشنل ایشو ہے جو فنڈامنٹل رائٹ سے جو ہے ماخذ ہے. تو اس لیے انہوں نے بھیجا. ان کا تو شمولیت جو ہے اس بینچ میں لازم ہوتی ہے. جو ریفری ججز ہوتے ہیں یا جج صاحب ہوتے ہیں جب بھی کوئی لارجر بینچ بنتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے کہ 2 ججز کو نہیں بیچ میں شامل کیا گیا. تو دیکھیں یہ ایک تو پریروگیٹو ہوتا ہے چیف جسٹس کا, دوسرا صرف ایک کیس تو نہیں ہے نا بھائی.
सभी जज बराबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। जब सुनते हैं लेकिन सुन लो ना। खोसे साहब, अब मुसलसल जस्टिस गुलजार के दौर से देखा जा रहा है कि सीनियर जजेस को डिस्करेज किया जाता है और जूनियर जजेस जो हैं अदला अदलिया में लाए भी जाते हैं और अहम बेंचों में एक मखसूस बेंच के सामने तमाम मुकदमा लगाए जाते हैं। देखें, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी जज जो है वो माशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक आता है, उनके अख्तियारात भी बराबर होते हैं और जुडिशल फंक्शनिंग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उनका फैसला उतना ही मौसर है। सुन लें जरा, सुन लो, देखें, नहीं, अच्छा सुन तो लो यार, सिर्फ एक केस नहीं है भाई, सीनियर जजेस को और केस भी तो है जो उनको तफवीज करने चाहिए, जो सुनने चाहिए उन्हें। मुल्क और कौम जो है वो मुतमन्नी है कि खुदारा इंसाफ के जो है ऐवानों में उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लोग बिलक रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या बेहतर ना होता कि फुल कोर्ट बन जाती? नहीं तो फिर बाकी केस सारे जो है वो खूह खाते सुट दो। देखें, पहले ही बहुत ज्यादा 2 बजे के बाद बैठ रहे हैं, कोई केस नहीं है। नहीं यार, देखो आपका क्या ख्याल है कि यही होता है जजेस का फंक्शन जो अदालत में करते हैं? ओ भाई साहब, गलत फहमी निकाल दें, जजेस जाके फिर फैसले लिखते हैं। फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ, ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, लेकिन 9 जजेस क्या कम है? मैं समझता हूँ जानिबदारी से इस्तेमाल होना चाहिए या गैर जानिबदारी से, या कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए लार्जर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन का? देखें, अगर तो आपने कोई क्राइटेरिया, बेहतर होता कि अगर 1 से 9 तक कर देते, जो है कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि सीनियर जजेस दीगर मुकदमात के लिए भी वो जो है उनको वागुजार स्पेयर किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कंट्रोवर्शियल किया जाए। देखें, एक बात, ये बड़ी जुल्म है जो कि अगर आपने इंसाफ के ऐवानों से अवाम का अगर एतमाद उठ गया तो खाना जंगी होगी, रूल ऑफ लॉ की नफी हो जाएगी। बात करके क्या खुद अदलिया उठा रही है ये तो अवाम का एतमाद? नहीं, कोई अदलिया नहीं उठा रही है। देखें, वो जो आप जिसका हवाला सुन लो, जिन केसेस फैसले हो रहे हैं, जिन केस का आप हवाला दे रहे हो वो रिव्यू में पेंडिंग है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर जो है जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, उस पर इख्तलाफ राय जो अंदरून आया है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव साइट्स पर उन्होंने लिखा है, उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन से ताल्लुक नहीं होता। फैसलों के ऊपर जाती लड़ाइयाँ जो है वो उसको बरकरारी हासिल है। आप माशाअल्लाह जो है मीडिया बहुत वाइब्रेंट और वोकल है, आप लोग इसको छालते हैं, लेकिन मेरी नजर में देखें, इस इदारे को खुदारा कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। मैं समझता हूँ यही मुल्क के लिए बेहतर है। शुक्रिया सर। से कब चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मनाजिर हैं फैसला आने के बाद। जी, तो ये मनाजिर हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस की समाअत थी उसके बाद के मनाजिर हैं ये। इस वक्त हम कोर्ट रूम के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम जो है अहाता अदालत में मौजूद हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो समाअत के बाद जितने भी लोग हैं जिनके साथ भी गुफ्तगू हुई है, सबका यही कहना है कि वो जो टाइम पीरियड है 90 डेज का, अब उसके अंदर जो है इंतखाबात होना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और ये जो मामलात हैं, पहली बात तो ये है कि जैसे अतर मनल्ला ने ये भी सवाल उठा दिया है कि जिस तरीके से, जिस तरह से असेंबलियां तहलील हुई हैं, क्या वो दुरुस्त थी, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर जिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिया कि हो सकता है कि असेंबलियां वापस बहाल हो जाएं, तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त। और इस वक्त तमाम जितने भी सीनियर वकला हैं और बाकी जितने भी यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जो है अपना साथी है, उनका यही ख्याल है कि वो जो था कि यहाँ से कोई जल्दी से फैसला आएगा, मगर आज की समाअत को मद्देनजर रखते हुए यही लगता है कि
केस की जो अपना फैसला है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा और ये एक लंबा चलेगा और हो सकता है कि वो जो इलेक्शन है वो भी 90 डेज में ना हो सके और उसके बाद हो जाए। तो अब देखना होगा कि कल इस केस में यहाँ पर क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफिज।